So good evening, friends. We are here to discuss about the issues and how to handle notices जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में इशू करे हैं। नोटिस भी कोई छोटे नहीं है। मतलब इफ यू सी नोटिस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के नोटिस हैं और उसमें 50 50 पार्टीज की डिटेल है। सो व्हेन वी कम टू दैट कि भाई इसको करना कैसे है, हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दिस। फर्स्ट थिंग आप देखो, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द नोटिस। सो द नोटिस इज ऑफ लेट्स से 100 pages which contains detail of around 30 different parties. Now the notice was issued in last week of, oh sorry, let's say 5th. That was a time period for 74 notices for 1718. Now, how we are going to handle this? What could be the problems? What could be the things? First and foremost, whether this notice can be issued in 74 or not. आज मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है. You have to keep on you have to mark all the details because this is a communication with 53, not 74. भाई 74 फ्रॉड केसेस में. ओके, वॉइस इज लैकिंग टू मच. ओके, 74 नोटिस आता है फॉर व्हाट वी से fraud cases. Let's say our client was genuine client. Now the notice has been issued in this way. X was a fraud party. X has made bogus sales to Y, again a fraud. Y had made supplies to Z. Z was, let's say, an entity which was mix of these. उसने कुछ, जैसे कई बार कुछ बिजनेसमैन कर लेते हैं, उसने बोगस परचेज भी ले रखी है और वो जेन्युइन सप्लाई करता है. यू आर पार्टी नंबर ए, आप 100% जेन्युइन है और आपने जेड से जेन्युइन सप्लाईज ले रखी है. आपने बी को सप्लाई करा, अगेन अ जेन्युइन सप्लाई. बी हैज सप्लाइड टू सी अ जेन्युइन सप्लाई. सो इन द चेन फ्रॉम एक्स टू सी, सो ABC 100% genuine, Z mix, and X and Y are totally fraud. Now, when this notices has been issued, तो वो सारे नोटिस जिन्होंने सबको इशू कर दिए, all 6 parties. The notice has been issued to all 6 parties. Maybe Z is behind the bar or Z is under the custody. Z has given a statement that he has made all bogus supplies. Let's say Y has also given a statement, he has given bogus supplies. Z, again, he was questioned or summoned by the department, who has said, yes, I had mix of both things. Okay? And you as A and your clients B and then C, इनको सीधा नोटिस आया. Now, how to handle this? How to handle this? First thing, we need to cross check. We need to cross check whether the supplies which we have received were genuine or fraud. If they are genuine, आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर एक पार्टी ने, ऐसा हो जाता है कई बार कि आपका जो सप्लायर है उसने कोई गड़बड़ कर भी रखी है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ अगर सप्लाईज बोगस ले रखी है तो उसकी वजह से उसकी जितनी सप्लाईज हैं आगे वो सारी बोगस होती। So you should have a documentary evidence to prove it. So first thing, in my humble opinion, once you receive notice, you should challenge the premise of Section 74 that you are a genuine party, you have not done any fraud, and this case belongs to Section 73 and it is a time barred case. Or let's say if time is remaining also, then also it is Section 73 because you are genuine party. Second, first thing, challenge 74. Second, you should go ahead and demand cross examination. Voice is lagging too much. Let me check बेटा हो क्या रहा है. देखिए now is this clear? Voice is clear now? Now voice is clear? Yes. Okay. Thank you. So now we have a better voice quality. See, whenever we are discussing GST in last 7 years, we cannot ignore technical glitches. कहीं ना कहीं जीएसटी की जहां भी बात आती है कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच इनका आता ही आता है. कभी इनका पोर्टल में आता है और हमारे जूम में आ गया वॉइस के थ्रू. चलिए. सो फर्स्ट वी हैव चैलेंज द premise of 74, that should be 73. Now we are saying that these are genuine transactions. Now we are asking or demanding a right to cross examine. See, cross examination is a very important part of litigation. You have the right to cross examine anyone who has given a statement or a third party on whose statement department is relying and allegations of fraud has been made against you. तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन मांगिए हर उस आदमी का जिसका स्टेटमेंट डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है. आपको बहुत ध्यान से ये नोटिस पढ़ना है. सी द नोटिस वुड बी 100 pages. RUD would be of 400 pages. You are supposed to read all 500 pages and select what relevant paragraphs are for your client. आप फिर इन सबसे आगे बढ़िए. क्रॉस एग्जामिनेशन मांगिए. और आपको क्या लगता है कितने लोगों को लगता है कि डिपार्टमेंट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन दे देगा? अगर आपने डिमांड भी करी क्रॉस एग्जामिनेशन की कि डिपार्टमेंट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन देगा, से डिपार्टमेंट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कभी देता ही नहीं है. कभी नहीं देता. तो जब आपको पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन आपको नहीं मिलेगा तो मांगने का क्या फायदा? जब आपको ये पता है कि डिपार्टमेंट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं देगा, इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन मांगने का फायदा है.
बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आपने क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा, यस इट्स आवर लीगल राइट। यस रविंद्र जी, इट्स आवर लीगल राइट, एंड डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ अस टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस और द पर्सन ऑन हुज स्टेटमेंट, जिसके स्टेटमेंट के बेस पर मुझसे डिमांड मांग रहे हैं, उसी को क्रॉस एग्जामिन नहीं करने देंगे। एंड देन व्हाट वी विल डू, व्हेन वी विल appeal अगेंस्ट दिस, देखो डिपार्टमेंट मन बनाकर बैठा, 100 पेज का नोटिस निकाला है, 400 पेज के आरयूडी हैं, तो वो आपका रिप्लाई को पढ़ने वाला भी नहीं। पढ़ भी लेगा तो वो यही कहेगा, सर मैं तो आज को नोटिस को ऑर्डर में कंफर्म कर रहा हूँ। और यही आप चाहते भी हैं, इसी में आपका फायदा है कि अगर वो नोटिस को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे आपने देखा भी है कि एक लाइन में लिख देते हैं रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो ऐसा अगर हो जाता है तो आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपने क्या करा, सेकेंड क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, तो ये चैलेंज आप जाकर ऊपर जब इस केस को चैलेंज करेंगे तो आप उसमें कहेंगे कि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा था, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज नॉट बीन फॉलोड एंड दिस ऑर्डर डज नॉट सस्टेन। तो अगर आपके मेरिट्स में भी गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत, तो भी आप केस आगे जाकर अपने फेवर में ड्रॉप करवा सकते हैं अगर प्रोसीजर का वायोलेशन हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड थिंग, थर्ड है डिपार्टमेंट ने आपको तो कह दिया कि भाई ये सारा पैसा आपने इधर उधर मूव करा। Can we ask cross examination of IO? See, the IO has never given a statement against you. It's not a criminal law. If it had been a criminal law, you would have certainly demanded cross examination of IO. We are into civil matters. And that too, our demands are basically evidence based demands. Okay. So now, third thing is that all these transactions were entered through banking channels. Am I right or wrong? भैया आपने उनसे सप्लाईज ली या सप्लाईज दी, सबका बिल है आपके पास, ई वे बिल है, बैंक से ट्रांजेक्शन है, और डिपार्टमेंट ने इसको डिनाई कर दिया कि हम नहीं मानते इन ट्रांजेक्शन को, दीज वर बोगस ट्रांजेक्शन। ऐसा ही है ना नोटिस में लिखा हुआ। पर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लिखा है डिपार्टमेंट ने, आप इसको सोच कर देखिए, आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को डिनाई कर रहे हैं। द एलिगेशंस आर दीज ट्रांजेक्शंस आर बोगस ट्रांजेक्शंस which were done through banking channels। बट डिपार्टमेंट ने क्या मनी ट्रेल को चैलेंज करा है? मनी ट्रेल समझ रहे हैं ना आप, कि मैंने जेड को आईएमई, मैंने जेड को पेमेंट कर दिया, जेड ने, क्या जेड ने मुझे पैसा वापस लौटाया? दीज आर नॉट अकोमोडेशन एंट्रीज, दीज आर जेन्युइन ट्रांजेक्शंस। सर मैं ये कह रहा हूं, ए इज अ जेन्युइन पर्सन हु हैज रिसीव्ड दिस नोटिस, जेड वाज आल्सो a genuine party. Due to certain reasons, Z has received some bogus entry. X was 100% fake, Y was 100% fake. Let's say Z was 5 and 95. 95 genuine, 5 bad. And that's A 100% genuine, B 100% genuine, C 100% genuine. But notices are issued to everyone. Now, what we are trying to ask, see, department has levied allegation that these transactions never happened or these transactions were fake. Agree. But in the notice itself, कहां पर लिखा है कि उन्होंने मनी ट्रेल को चैलेंज किया है? हैव दे चैलेंज्ड?
कहीं पर उन्होंने एलिगेशन लगाई दैट दिस ट्रांजेक्शन विच यू हैव डन इज अ बोगस ट्रांजेक्शन एंड द मनी वाज रिटर्न टू यू? सी सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स को जब आप हैंडल करते हैं और जहां भी ये केसेस होते हैं, चाहे वो पीएमएलए हो, फेमा हो या ब्लैक मनी हो, इस तरह के जहां भी है वहां मनी ट्रेल प्रूव करना ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज डिपार्टमेंट इज द वन हु इज लेविंग एलिगेशन. सो वी हैव गॉट वन क्वेरी, हरप्रीत जी. Sir, proper officer is asking for details which are not even relevant during registration and seeking documents. Now, even if we provide those documents, they don't even bother to open the PDF file. Sir, आपको भी पता है क्यों मांग रहे हैं? मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेवेंट है, बड़ी हटकर है. कोई बात नहीं, मांग रहे हैं आप, उन्हें जितनी डिटेल आपके देने चाहिए ऑफिसर से आप. So, third point on which you are charging or fighting with this is, where is the money trail? मैंने जेड से सप्लाईज ली, मैंने जेड को पेमेंट करा, मेरे पास पैसा वापस भी आया होगा. आप प्रूव करो पैसा वापस आया. एलिगेशन तो आपकी हैं. सी बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अस टू क्लेम आईटीसी दैट दीज आर जेन्युइन ट्रांजेक्शंस. लेकिन ये एलिगेशन जब आप पैसों की लगाते हो तो जो एलिगेशन लगा रहा है उसको प्रूव करना है. समझे? इसके बाद फोर्थ पॉइंट, सर आप प्रिवेसी की बात कीजिए. बिजनेस सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? एवरीवन हैज देयर ओन बिजनेस सीक्रेट. सो ए एज अ जर्मन पार्टी was purchasing from Z, supplying to B. B was purchasing from A and supplying to C. ये एक बिजनेस सीक्रेट है या नहीं है? बिल्टू शिफ्टू क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा? बिकॉज इट ओपन्स अनदर पार्टी कम्स टू नो कि भाई कहां से सप्लाईज ले रहे हैं. ठीक है, आप प्रैक्टिकली बताइए, इस नोटिस से जो ये जेन्युइन पार्टी थी जेड ए बी एंड सी, क्या इनका बिजनेस सीक्रेट आउट हो गया नहीं होगा? सी कम्स टू नो कि मैं बी से सप्लाई ले रहा हूं, बी ए से ले रहा है, ए जेड से ले रहा है. बी को पता चल गया कि मैं ए की बजाय सीधा जेड से ले सकता हूं. जेड बी और सी को कांटेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता? सी डायरेक्टली बी को बाईपास करके ए के पास आ सकता है नहीं आ सकता? या सी डायरेक्टली जेड के पास जा सकता है नहीं जा सकता? बी जेड के पास जा सकता है नहीं जा सकता? आप ये बताइए, यस और नो. मामला पूरा जो था वो अमाउंट रिकवरी का था. आपका ट्रेड सीक्रेट पब्लिक में अनाउंस करने का नहीं था. ये जो ट्रेड सीक्रेट डिपार्टमेंट ने आपका बता दिया, क्या इनके पास इसका राइट था? क्या इनके पास इसका राइट था? समझिए, बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या इनके पास इसका राइट था? द आंसर इज नो. इनके पास कोई अधिकार नहीं था कि आपका बिजनेस सीक्रेट ये किसी और को बता दें. इनको कोई राइट नहीं था ये बताने का कि बी ए से सप्लाई लेता है, सी को ये पता चल गया कि बी ए से सप्लाई लेता है और ए जेड से. इन्होंने पूरा इको सिस्टम बिजनेस का हिला दिया और ये गलत हुआ.
कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये जो नोटिस हैं ये पहले से आ रहे हैं, सालों साल से चलते आ रहे हैं, और इस तरह के नोटिस ये एक्साइज के टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, मान गया। एक आदमी बिना सीट बेल्ट लगाए कन्याकुमारी से चलता हुआ आ रहा है, क्या उसका दिल्ली में रोक के चालान नहीं कट सकता? क्या वो दिल्ली में ये बोल सकता है कि नहीं भाई, मैं तो कन्याकुमारी से चलता आ रहा हूँ, केरला से आ रहा हूँ, और मेरा रास्ते में किसी ने चालान नहीं काटा, तो आप चालान नहीं काट सकते? क्या ये कहा जा सकता है? नो। तो जब जाओ तब सवेरा, आप इसको चैलेंज कीजिए। So we have got one query. So department telling your supplier bogus, and he has pan India registration in every state, and hence everything is bogus. We have purchased genuinely within the local city, and transportation done by supplier itself inclusive of rate. Still they are bulldozing and not objecting our sales. They are making pressure that they will pass order and no cross law. See, there is no bar in the law where an officer cannot pass a totally illegal vague order. It is you who has to prove that the order is vague, illegal. Okay. So you need to contest the order. Let them pass the order. You should continue your fight for the justice. ठीक है। नाउ ये तो मैंने स्पेशल पॉइंट बताया इन 100 पेज के नोटिस के लिए। अब जो जेन्युइन चीजें हैं वो समझ लीजिए जो आपको करनी है। जब आप रिप्लाईज बनाएंगे तो आपको ये सब तो डालना ही पड़ेगा जेन्युइन। और उसमें होता है कि ये परचेसेस बोगस थी या नहीं थी। बोगस थी या नहीं थी, let court decide. We are more on the evidence side. What evidence is? So we have to challenge this 16(2)(c) on 5 grounds. 16(2)(c) has to be challenged on the 5 grounds. That first is lex cognate impossibilia. The notice which you are saying that I should be careful that my vendor pays correct tax is an impossible condition on me. I cannot control it. How can I control that my vendor should make correct tax payment? No, it's an impossible condition on me. Second, GST laws has come with duties that I should take care of. My vendor should make timely payment. But the word is rights and duties. It is never duties and duties. So to ensure that my vendor makes payment, I have not been provided any right in the GST laws. I have been provided or the law has cast a duty on me. लेकिन इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए मुझे राइट्स दिया आपने? नो, राइट्स आर मिसिंग। थर्ड, अगर आप इसको इस तरह समझें, कि आपने इनको हटाना शुरू करा, सॉरी, आपने अगर देखना भी शुरू करा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पर क्या अलाउ कर रखा है, दैट यू गो विजिट जीएसटी डिपार्टमेंट वेबसाइट, put the number of the other party, and you can see whether that party has filed his returns or not, and whether there is a difference between GST R1 and 3B or not. And that talks about totality. तो हम ये तो देख सकते हैं कि उसने टोटल का पेमेंट करा या नहीं करा, लेकिन कहीं भी ये नहीं देख सकते कि उसने पेमेंट कितना करा, सही पेमेंट करा नहीं करा। ये 3 पॉइंट्स
इसके अलावा दो और पॉइंट्स. One of the object of coming with GST was reduction in litigation and removal of cascading effect. Cascading effect था टैक्स के ऊपर टैक्स. तो जब मैंने एक जेन्युइन पार्टी थी, मैंने जेन्युइन ट्रांजेक्शन थी, मैंने टैक्स पे कर दिया, तो जो अब आप मुझसे दोबारा नोटिस इशू करके मुझसे पैसा मांग रहे हो, तो आप मुझसे डबल टैक्सेशन पर बढ़ गए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी वाज टू रिड्यूस कास्केडिंग इफेक्ट, और आप तो डबल टैक्सेशन की तरफ बढ़ गए. क्या ये सही है? इट इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग विद जीएसटी. प्लस आज आप मैं ये पैसा दे भी देता हूं आपके नोटिस के अगेंस्ट में, मुझे तो वापस नहीं मिलेगा. और अगर मैं ये पैसा दे देता हूं जीएसटी नोटिस के अगेंस्ट में, ये सारा पैसा अगर मैंने दे दिया, तो आप सोचिए, हो सकता है मेरा बिजनेस ही ना चले, हो सकता है मैं बिजनेस ही ना चला पाऊं, हो सकता है बिजनेस ही फेल हो जाए. ये भी ध्यान रखना है आप. देन वन मोर थिंग, अब जब आप नोटिस को ध्यान से पढ़ें तो कुछ नोटिस में ड्यू डेट टू रिप्लाई नोटिस एंड पर्सनल हियरिंग इज मिसिंग. तो ये भी एक पॉइंट आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिप्लाई नोटिस नहीं है, विच इज अगेंस्ट अ वायलेशन ऑफ जीएसटी नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ऐसा कोई नोटिस नहीं हो सकता जिसके जिसमें ये ना लिखा हो किस डेट तक रिप्लाई करना है और क्या डेट है पर्सनल हियरिंग की, और अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो क्या एक्शन लिया जाएगा. देखिए, दो चीज समझिए आप. एक तो आपको डेट बतानी है कब तक रिप्लाई करना है, और ये बताना होता है कि अगर रिप्लाई नहीं करा और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो क्या एक्शन लिया जाएगा. अगर ये चीजें नोटिस में नहीं लिखी हुई तो आपको इसको चैलेंज करना पड़ेगा. ठीक है. तो आप इन जो मैंने शुरू में तीन चार बातें बताई और ये एंड में ड्यू डेट, वो पर्सनल हियरिंग और रिप्लाई डेट की बात करी, और जो पांच पॉइंट मैंने 73 के रूटीन वाले बताए, तो इन सबको अगर आप मिक्स करेंगे, देखिए इंडिविजुअल, देखिए कभी भी 74 के नोटिस का रिप्लाई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. इट हैज टू बी कस्टमाइज वन. कस्टमाइज इसलिए क्योंकि इसके ग्राउंड्स हर नोटिस के अलग होंगे. हाँ, ये जो एक सेट है, एक सेट को एक नोटिस आया होगा, दूसरे सेट को दूसरा नोटिस आया होगा, तो उनके हर सेट को नोटिस अलग अलग होंगे. तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं हो सकता. इसको आपको ढूंढना पड़ेगा. यस, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सुमित जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड यही चीज हमें आगे लेकर जानी है. सो फ्रेंड्स, ये जो 74 के 100 पेज के नोटिस हैं, आप उनसे बिल्कुल मत डरिए, कोई टेंशन मत लीजिए, और आप इन सबको चैलेंज कीजिए. आपके जो क्लाइंट्स जेन्युइन है उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड कीजिए. फाइट फॉर योर क्लाइंट्स, बिकॉज दे नीड योर हैंड होल्डिंग, दे नीड योर एक्सपर्टीज टू चैलेंज सच नोटिस. 100 पेज का नोटिस देखकर क्लाइंट भी डर गया है, 400 पेज के आरयूडीज है, बहुत सारे घबराहट हो रही है कि क्या होगा. एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस नोटिस इज मोर और लेस लाइक एन ऑर्डर. तो लैंग्वेज पढ़कर भी डर लग रहा है, बट डरिए मत, घबराइए मत. थोड़ा सा समय लगाइए नोटिस के साथ, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और आपको कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज विद यू. यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन सोशल मीडिया. आई एम देयर टू हेल्प यू. बाकी कुछ मुझसे चाहिए तो जरूर मैसेज कीजिए मुझे. आई विल, वट एवर आई कैन डू, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद द fraternity. I will do what best I can do. Thank you. Thanks a lot. With your due permission, closing this. Thank you.